We need salary. Strike on, strike on, strike on, strike on. Yes, strike on. मंडल पीछे सीनू सर। हाँ सीनू सर तो संतोष बोला ना आ रहे हैं तो शायद सचिन जी। അയാളുടെ മകനുണ്ട് മറ്റൊക്കെ ആണ്ട് ബോംബെ പോയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അവരുടെ പാർട്ടി ഡയറക്ടേഴ്സ് അവർ വന്നില്ലേ ഇതുവരെ? 5.76% का रेज दिया आपने, का फेयर है, फिर भी वो उठ के चले गए। हमारे केवल ये अगर मुझे फेयर होने के बाद भी मुझे फेयर नहीं बोला जाएगा फिर तो Sir, we had a discussion with the MPs about almost 7 MPs from Kerala. We have had a discussion with the management. Some of the issues, some of the doubts I had with the staff nurses, so we have cleared some of it. Regarding the revision, we have set what is our demand and we have requested them to consider it. I think the chairman is on the station, he will be coming back in the afternoon also. So we will then look into whatever possible. We expect they will do it. how was the meeting? How much time they had? We spoke almost for we had a discussion almost for 1 hour. The administrators and the doctors and everyone were there. So we only hope that this problem will be solved and some help will be there. What did they say, like how much time they will take to solve this problem? No, they had the manager chairman is not here now, so they will have to come back and see them, get in touch with them and see what is possible. What's your name? I'm Jose K. Mani, Member of Parliament. He is Sampath, he is the Nabal Chief. So how many members from Parliament come here? See, almost 6 of them, cutting across from all the parties, members are come. So are you satisfied with the meeting? This is the solution hasn't come out, so but we expect a positive reply from them. So are the management ready to? No, that they have to discuss with the chairman. They have to talk about the time. No, time is we are not. इश्यूज क्या हैं जिस पर ये स्ट्राइक चल रही है? इश्यूज ये है बेसिकली दैट देयर वाज सर्टेन दे वांटेड सम सैलरी राइज. हमने जितनी सैलरी राइज कर सकते थे बेस्ट वी हैव ऑलरेडी डन इट.
whatever salaries we are paying as on date, in comparison to any other hospitals in NCR, on an average we are paying the best salaries. There were 5 MPs from Kerala who had come to discuss the same issue of strike, which is almost around 12 days old. And these 5 MPs, they are very good in healthcare, they know what it is. आपसे भी शायद बातचीत हुई थी, and they appreciate कि हमारी पोजीशन इस वक्त क्या है. It's a private owned hospital. And हमने बड़ी कोशिश करी, जितने भी नर्सेस के ग्रीवेंसेस हैं, we have tried to address each and every one. The salaries, as I already said, we have done the best in NCR. We are looking for them for the best welfare. Their salaries and welfare, if you compare from anywhere, I think we are much better. We have also explained to the MPs who are here with us, and they have appreciated, that the nurses, but the management is, what we are trying to do, as far as salaries की बात होगी, थोड़ा सा हिंदी में बोलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. ज़रूर. नहीं, केरला के MPs के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया. जो 12 दिन की स्ट्राइक्स को आए थे, वो काफ़ी कुछ जानते हैं हेल्थ केयर के बारे में, ऐसा नहीं है. वो सैलरीज के और ग्रीवेंसेस के बारे में बात हुई थी, उस पर हमने ये एक्सप्लेन किया उनसे कि हमारे अस्पताल में जो वेलफेयर की चीज़ें हैं और सैलरी की हैं, NCR के जितने भी अस्पताल हैं उनसे कहीं बेटर है. लेकिन नर्सों का ये कहना है कि जो गवर्नमेंट जो पे स्केल है वो भी आप नहीं दे पा रहे हैं. उनकी वो बिल्कुल दे हैव बीन रॉन्गली इन्फॉर्म्ड. वो जो हमारे पास डिस्कशन करने 4 बार एक जने आते हैं और 4 बार कोई और आता है. बाहर जाके वो 4 जने क्या एक्सप्लेन करते हैं, एंड देयर इज अ टोटल कंफ्यूजन. What you are paying now? वी आर पेइंग देम 2 तरीके हैं उसमें. जो हमारे फर्स्ट एंट्रेंट हैं, वी आर पेइंग देम 13,000 रुपीज़ who are GNAs, and the nurses और BSc इंजीनियरिंग विल बी पेइंग देम 13,500. हमने उनको अलाउंसेस भी और बढ़ा दिए, लॉयल्टी अलाउंसेस ऐड कर दिए. इसके अलावा हमने इंक्रीमेंट जो इस साल लगना था 8, 10, 12%, वो सब भी हमने लगाया है. तो वी हैव पेड क्वाइट अ लॉट. डिमांड क्या है उनकी, कितना डिमांड कहते हैं आप थोड़ी और बढ़ा दो, कोई पर्टिकुलर अमाउंट? तो 15,000, विच अगर ये अस्पताल अगर हमको चलाना है तो दैट इज टू मच. उनकी एक और भी बात है कि एक नर्स को 10-10, 12-12 पेशेंट केयर के लिए दी जाते हैं. ऐसा बिल्कुल सही नहीं है. देखिए 200 पेशेंट हैं, राइट, और एक शिफ्ट के अंदर 120 के करीब नर्सें आती हैं. तो 200 पेशेंट में अगर 120 का भी एवरेज लें तो इतने बात यदि उनकी की जाए तो उनकी 2-3 तरह की मांगे हैं. जैसे उनका कहना यह है सबसे पहले कि आपकी तरफ से उनको धमकाया जाता है, आपके गार्ड्स जाके उनको ये ज़बरदस्ती फ़ोटो खींचते हैं, और कुछ जो पैसे की डिमांड है ज़बरदस्ती उनसे डबल शिफ्ट करवाई जाती हैं. तो क्या इस तरह के भी कुछ ऐसा सारे एलिगेशंस गलत हैं. ऐसा हमारे पास कोई ऐसा गार्ड नहीं है जाके जो धमकाएगा. हमने तो उनकी सेफ्टी के लिए जो गर्ल्स हॉस्टल बना रखे हैं वहाँ पे गार्ड जरूर खड़े करने के, उनकी अपनी सेफ्टी के लिए. धमकाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता. हम क्यों किसी को धमकाएंगे. तो जो बातचीत हुई उसमें क्या फाइनलाइज हुआ, उन्होंने तरफ से क्या कहा गया? उन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट करी कि थोड़ा और कंसिडर करो. अभी चेयरमैन साहब है भी नहीं, लेकिन हमने उनको ये बता दिया इससे बेसी हम कंसिडर कर ही नहीं सकते. तो जो प्रॉपर कम्युनिकेशन आपस में नहीं हो पा रहा है, आपने बताया कि पहले 4 कोई और आते हैं और बाद में 4 कोई और आते हैं, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पाया? हमने कोशिश करी, उनको बुलाया, उनको समझाया. जिन 4 जन आके समझते हैं वो जाके बाहर कुछ और बात कर लेते हैं. अब जो बताया जा रहा है कि उनके जगह पे कुछ और स्टाफ डिप्यूट हो गया, तो अब जो फाइनल है क्या उन्हें बाहर किया जाएगा जो स्ट्राइक पर हैं? देखिए जो लोग प्रोविजन पे हैं या जो लोग स्ट्राइक के अंदर से ऑलरेडी टर्मिनेटेड हैं, वो एक क्वेश्चन मार्क है. बाकी जो आज आना चाहते हैं एवरीबडी इज वेलकम. कितने लोगों को टर्मिनेट किया गया? करीबन 16 हैं. कितनी नर्सेस स्ट्राइक पर हैं? नर्सेस कोई 300 से ऊपर है. 300 के करीब. इसके बदले में नर्सें रखी नहीं है क्या? हाँ, जो कुछ नर्सेस बाहर से रखने की, जो हमारे पास कुछ तो वापस आ गई. 60 नर्सेज हमारे पास वापस आ चुकी हैं. सीनियर नर्सेज और काम कर ही नहीं थी, तो हमने उनका गैप बंद करने के लिए कुछ नर्सेज बाहर से भी ली. अगर उनका कोई 4 आदमी प्रॉपर बात नहीं कर पा रहे तो आपकी तरफ से कोई जाकर उनको समझाना नहीं किया? जितने डॉक्टर्स थे यहाँ पे सीनियर मोस्ट जो उनके साथ हमेशा काम करते हैं, वो सारे डॉक्टर्स जाके उनसे बातचीत कर चुके हैं, उन्हें समझा चुके हैं, लेकिन वो समझने को कोई नहीं राजी हो चुका. आज MP से जो बातें हुई हैं, केरला से जो आए हैं, तो क्या वो आपकी बातों से संतुष्ट लगे या उन्होंने कुछ और बातें आपको? वो हॉस्पिटल को देख के वो काफ़ी इस तरह से संतुष्ट हैं कि ये अस्पताल इस एरिया का बेस्ट अस्पताल है वेलफेयर और सर्विसेज देने के लिए. ये उनका स्टेटमेंट था लास्ट. थैंक यू.